On behalf of Ajax Engineering, SBI Capital Markets, and my fellow BRLMs, I express my sincere gratitude to all of you for attending this event. I take this opportunity to introduce the distinguished members of the company. On the dais, we have with us today Mr. Subrata Saha, who's the Managing Director and CEO, and Mr. Tuhin Basu, who is the CFO. It gives me great pleasure to introduce to you Ajax Engineering. Ajax is the leading concrete equipment manufacturer with a comprehensive range of concrete equipment, services and solutions across the concrete application value chain, with a market share of 75% of the SLCM market in India for FY24. As of September 24, the company has developed over 141 concrete equipment variants catering to the concrete application value chain, and over the last 10 years, it has sold over 29,800 concrete equipment in India. As of September 30th, 2024, the company operates 4 assembling and manufacturing facilities in the state of Karnataka, each specializing in distinct product lines. The company is co-founded by Mr. Krishnaswamy Vijay, Executive Chairman and Whole-Time Director, the late Jacob John, and the late Anil Kumar Singh. The company's shareholders also include Kedara Capital, whose expertise and guidance has contributed to the formation of a robust capital base, positioning the company for continued growth and success in its operations. The company has demonstrated a track record of delivering growth in revenue, margins, and return. The company proposes to open its bid offer on Monday, February 10th, 2025. The offer for sale is up to 20,180,446 equity shares of face value ₹1 per share. The price band is fixed from ₹599 to ₹629. This brings the deal size up to approximately ₹1,270 crores at the upper price band. The bid offer closes on Wednesday, February 12, 2025 for all bidders. The minimum bid lot is 23 equity shares and in multiples of 23 equity shares thereafter. I would now like to invite the Ajax management to further address the gathering here. Thank you. एजैक्स इंजीनियरिंग कंपनी 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी नींव 3 टेक्नोक्रेट फाउंडर्स ने रखी थी और ये तीनों लोग उस टाइम L&T में काम किया करते थे एजैक्स इंजीनियरिंग को फाउंड करने से पहले। उनमें से 2 जिनके बारे में शिवानी ने बताया भी था, वो चल बसे थे। आज हमारे साथ यहाँ पर तो नहीं मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं मिस्टर कृष्णस्वामी विजय, उन्होंने पिछले 33 साल को इस कंपनी में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो मशीन आप उस तरफ स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर। उनको श्रेय जाता है कि इस मशीन को भारत में लाने का और कंक्रीट इक्विपमेंट की मैकेनाइजेशन के अंदर एजैक्स को एक अग्रणी स्थान प्राप्त कराने के लिए। और इसका श्रेय भी जाता है कि जिस तरह की डिजाइन है, जिस तरह का इसका इंजीनियरिंग है, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी है, रिलायबिलिटी है, क्वालिटी है, जो इतने सारे सालों में 3 दशकों के में एक परफेक्शन इस प्रोडक्ट के अंदर आया है। कस्टमर इसको क्यों पसंद करते हैं, उसका सिंपल रीजन है, इसकी प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और रीसेल वैल्यू सबसे बेहतरीन है कंपटीशन के मुताबिक। ये डेटा हम नहीं कहते हैं, हमारे कस्टमर्स कहते हैं। और अगर आप डेटा देखेंगे रीसेल वैल्यू का, अगर मशीन की लाइफ मान लीजिए अमूमन तौर पर 8 से 10 साल की होती है, तो 4-5 साल के बाद अगर मशीन कोई बेचने जाता है तो कम से कम 50 से 55% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन मिल जाता है, which is at least 10 to 15% higher than the nearest competitor. इनफैक्ट जब हम मार्केट में माल बेचते भी हैं, तब हमें खुशी है ये बताते हुए कि हमारा माल प्रीमियम पर भी बिक जाता है। तो ये जो मशीन है, ये छोटी मात्रा में कंक्रीट, फ्रीक्वेंट मात्रा में कंक्रीट और 4x4 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के तहत जाया करता है, जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन सेट इज वेरी वाइड, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर के अंदर। एक और चीज बता देना चाहता हूं कि
इस बिजनेस में वन ऑफ द थिंग्स दैट प्रोमोटर्स ने शुरू से ही डिसाइड किया था कि एसेट लाइट लीन बिजनेस मॉडल रखेंगे। और एसेट लाइट लीन बिजनेस मॉडल रखने के साथ हुआ क्या कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रही, रिटर्न मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग रहे, और बीच में जब कोविड आया भी, जब पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर डिफिकल्टीज आई, हमारा वॉल्यूम गिरा, रेवेन्यूज गिरे, लेकिन उसके बावजूद कंपनी प्रॉफिटेबल रही और कैश फ्लो पॉजिटिव रही। और जब कंपनी का बिजनेस ऊपर चढ़ा, गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपेंडिचर 2022 के बाद वापस कंपनी ने बहुत तेजी के साथ अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, और जो कंपनी 1992 में शुरू हुई थी, शून्य से लेकर 330 करोड़ का आंकड़ा फासला जो तय किया 1992 से 2014 तक, it is a story of conviction, it is a story of courage, it is a story of resilience of the promoters who stuck it out despite the fact that उस टाइम मैकेनाइजेशन का दौर नहीं था। और आज भी ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है कि आज भी भारतवर्ष के अंदर बहुत मात्रा में मैनुअल मिक्सर्स भी यूज होते हैं और मैनुअल मेथड से कंक्रीट बनाया जाता है। तो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद ये भी मैं कहना चाहूंगा कि एजैक्स इज नॉट जस्ट एन एसएलसीएम प्लेयर, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंक्रीटिंग इक्विपमेंट। एंड आई विल नाउ जंप इनटू थैंक यू। मैं इस वक्त आप लोगों का अटेंशन लेना चाहता हूं इस स्क्रीन के ऊपर। इस स्क्रीन पे हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में दर्शाया है कंक्रीट इक्विपमेंट वैल्यू चेन को। सबसे पहले अगर मैकेनाइज्ड प्ले के हिसाब से देखा जाए तो वी हैव टू फर्स्ट प्रोड्यूस द कंक्रीट, और कंक्रीट को प्रोड्यूस करने में, और कंक्रीट है क्या चीज? कंक्रीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट इन द राइट प्रोपोर्शंस। तो उसको बनाने के लिए मैकेनाइज्ड माध्यम से दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम उसको सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो येलो मशीन हमने पहले दिखाई, इसमें भी आपको येलो मशीन नजर आ रही है, जहां पर भी हमें छोटी मात्रा में कंक्रीट, फ्रीक्वेंट मात्रा में कंक्रीट और 4x4 एप्लीकेशन के जरिए काम करना पड़ता है, वहां पर एसएलसीएम ही सक्षम हो पाता है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप मशीनरी के हिसाब से देखेंगे, भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा बैकहो लोडर बिकते हैं, जिसको अमूमन तौर पर लोग बुलडोजर कहते हैं। इसी तरीके से पिक एंड कैरी ट्रेन के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट है। सिमिलरली 20 एचपी से लेकर 50 एचपी ट्रैक्टर की बेची है, और दूसरी मशीन हमने गैबॉन, जो अफ्रीका में है, वहां बेची है। हमें इस मशीन से काफी उम्मीद है, बिकॉज दिस मशीन कैन टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेट व्हाट अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट कैन ट्रूली डू फॉर द वर्ल्ड। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कदम और हमने आप लोगों ने हमारे कदम और आगे बढ़ाए, और कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 3D प्रिंटिंग, कंक्रीट 3D प्रिंटिंग को भी कमर्शियली दर्शाया। Again, we are the only Indian company that has designed, engineered and commercialized 3D printing in this country. हम लोगों ने भारत के one of the topmost engineering giants के साथ काम किया, और हम लोगों ने नॉर्थर्न इंडिया के अंदर उनके साथ काम करते हुए पोटेंशियली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड कैंपस बनाया, जहां पे 2.5 मंजिले मकान हम लोगों ने 3D प्रिंटिंग के जरिए दर्शा के दिखाया। उसी सेम कंपनी के साथ हमने दोबारा काम किया, और हमारी मशीन इस्तेमाल हुई टू मेक अनदर 2.5 story बिल्डिंग फॉर दैट कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ दैट कंपनी, यू कैन गेस दैट इट इज इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग जायंट। दिस स्पेस जो मैंने गोले के अंदर दिखाया है, ये सारे एलिमेंट्स हैं कंक्रीट इक्विपमेंट वैल्यू चेन के। I will now move into the applications of self-loading concrete mixers and all the other products other than the self-loading concrete mixers. In 2024 fiscal, out of the total revenue of Ajax, 85% came from self-loading concrete mixers, where we have 75% market share. 9% came from everything else other than self-loading concrete mixers, and 6% came from spare parts. इस्तेमाल कहाँ होता है एसएलसीएम, हम पहले इसके ऊपर थोड़ा रुझान डालते हैं। 30-35% of the application base SLCMs का PWD plus India's rural hinterland connectivity through PMGSY के माध्यम से जो सड़कें बनाई जाती हैं वहां पर जाता है, प्लस
PMAY के जरिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उसकी जो फाउंडेशंस होती है उसमें जाता है। 15 से 20% जाता है इरिगेशन और वाटरवेज के लिए। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जब ये मशीन पहली मर्तबा इंडिया में आया था, कुछ ही सालों के बाद नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा था और नर्मदा कैनाल के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस मशीन को इस्तेमाल किया और उस वजह से इरिगेशन के अंदर एजैक्स का सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर एकदम किंग बन गया। उसके बाद 15 से 20% रेलवेज और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी में मैं बता देना चाहता हूं कि आज के दिन पे सोलर एप्लीकेशन गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर और कई मार्केट्स के अंदर काफी मात्रा में, भारी मात्रा में एक्चुअली इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त ये बताता हूं कि रन ऑफ कच्छ के अंदर कोई मशीन बिकॉज ऑफ द मार्शी नेचर ऑफ द लैंड नहीं जा पाता है। यही मशीन काम कर रहा है टू एस्टैब्लिश the solar farms in the run of Kutch, which is being worked on by one of India's largest construction companies also. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री फ्लोरिंग्स, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग, बिल्डिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। Roughly आप मान करके चलिए about 65 to 70% of our business is predicated on government capex and about 35-40% is private capex. इस स्लाइड के बाद मैं आगे लिए चलता हूं कि हमारे कस्टमर्स किस टाइप के हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और बता देता हूं कि नॉन SLCM जो है, एवरीथिंग एल्स अदर देन द SLCMs, कहां इस्तेमाल होते हैं, रोड्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, डैम्स, टनल्स एटसेट्रा में, क्योंकि वहां भारी मात्रा में कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। As far as the customer segment is concerned, जब SLCM खरीदा जाता है तो ओनर ही ऑपरेटर बनता है, जैसे छोटे ट्रकों में होता है। So close to 30-35% of our customers are owner operators to begin with. उसकी इच्छा रहती है कि वो एक छोटा ठेकेदार बने, बड़ा ठेकेदार बने, वगैरह वगैरह, तो वो ज्यादा मशीनें लेता है। तो about 40-45% of our business is in small and mid-size contractor segment. और इन लोगों की इच्छा, आकांक्षा जो होती है वो ज्यादा मशीन एक्वायर करने के लिए होती हैं। तो जब वो ज्यादा मशीन एक्वायर कर लेते हैं तो फ्लीट ओनर बन जाते हैं। सो दे बिकम अ फ्लीट ओनर एंड 20-25% of our business is with fleet owners. Now, नॉन SLCM बिजनेस में आप समझ सकते हैं कि वॉलेट साइज बड़ा चाहिए, तो वहां पर ज्यादातर लोग जो मशीनें खरीदते हैं वो लोग स्मॉल एंड मिड साइज कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, EPC कंपनीज होते हैं, RMC कंपनीज होते हैं, सीमेंट की RMC कंपनीज होती हैं और रेंटल कंपनीज होती हैं। आई विल नाउ कि भारत को एक विकसित देश बनना है 2047 तक, तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अ सेक्युलर लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर इंडिया। और ये चीज 2014 से लेकर के 2024 और आने वाले सालों में भी ये देखा जाएगा कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक मॉडल रहा है वो कैपेक्स को स्पेंड करने से GDP को एक्सपैंड करने का मौका मिलता है, ये दर्शाया गया है। इनफैक्ट NIPFP डेटा के जरिए एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट 100 रुपीज स्पेंट इन कैपेक्स क्रिएट्स 2.45 टाइम्स एक्सपेंशन इन GDP, and we have been beneficiaries from 2014 onwards in terms of the scale of and the opportunity that this business has been given by way of the government spend. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारी मात्रा में स्टील, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल होना है, लेकिन हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या है? सीमेंट इज द कोर इनपुट व्हिच हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट। In India, cement is under-penetrated. अगर आप देखेंगे in construction activity, 11 to 13% of the total construction activity, cement is used. In India, per capita consumption के fields के अंदर काफी बड़े हस्ती रह चुके हैं। आप जिनको भी देखेंगे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो ट्रूली इंडिपेंडेंट अपने हैसियत में रहते हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड मैं कहूँगा माना जाता है।
जहाँ तक मैनेजमेंट टीम का सवाल है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट टीम, ये दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। इसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, बिजनेसेस को स्केल किया है। और जो ऑपरेटिंग लीडरशिप है, उनमें से लोग जो सेल्स के हेड है, उन्होंने 15 साल कंक्रीट इक्विपमेंट काम किया है। जो R&D के हेड है, वो उन्होंने भी करीब 14 साल काम किया है। सप्लाई चेन और सोर्सिंग के जो हेड है, उन्होंने कम से कम 8-10 साल काम किया है। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ पीपल जो लोग स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और एग्जीक्यूशन को अंजाम दे सकते हैं। आने वाले समय में एजैक्स क्या करने वाला है? एक मार्केट लीडर होने की हैसियत से, और वो भी 75% मार्केट शेयर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोग इस मार्केट की ग्रोथ को बढ़ावा दें और उसके साथ साथ अपनी लीडरशिप को मेंटेन रखें। और हम ये मानते हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर कम से कम 15 से 18% ग्रोथ इन केस ऑफ सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स आना चाहिए। नॉन एसएलसीएम यानी सारे प्रोडक्ट्स अदर देन एसएलसीएम, उसके अंदर ग्रोथ कम से कम 400 से 500 बेसिस पॉइंट्स हायर आनी चाहिए। स्पेयर पार्ट्स के अंदर कम से कम 20% का ग्रोथ आना चाहिए। और एक्सपोर्ट्स, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कम से कम 25% का ग्रोथ आना चाहिए। Ajax is a cash-rich company. Last year, it had a cash pile of 700 crores. We will see how best to utilize this, whether organic, inorganic, that time will tell. At this point in time, I will now invite our CFO. नंबर्स के देखने के पहले मैं 3 चीज़ों पे एक बार वापस आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करता हूँ। देखिए, शुभो ने बहुत चीज़ें बताई कि कंपनी किस तरह से ग्रो की है, मार्केट शेयर कैसा है, पर 3 बहुत अहम चीज़ें हैं। एक कि एसेट लाइट मॉडल का मतलब क्या है। एसेट लाइट मॉडल के 2 पहलू हैं। एक तो जो फिक्स एसेट उन्होंने बताया कि ग्रॉस ब्लॉक 150 करोड़ के आसपास है। दूसरा कि हमारा जो कैश चर्न है वो बहुत हाई है इस बिजनेस का, और वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हमारा डीलर नेटवर्क है, B2B2C मॉडल जो हम अपनाते हैं फ्रॉम अ कमर्शियल स्टैंड पॉइंट, वो आपको नंबर्स में दिखेगा। तो वो आप लोग एक बार बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में रखना। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने बताया कि हमारा जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन और क्वालिटी पे जो फोकस है, उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक कि अब जब आपको स्केल अप या स्केल डाउन करना हो, उसमें ऑपरेशनल फ्लेक्स है या नहीं, आपके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, कि आप फटाफट स्केल अप करें और स्केल डाउन करें। उसके लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट कम रखना बहुत ज़रूरी होता है कि तभी ये स्केल अप स्केल डाउन पॉसिबल रहता है। तो वो भी आपको फाइनेंशियल नंबर्स में अगले कुछ स्लाइड्स में दिखेगा। तीसरी चीज़ है मार्केट शेयर के बारे में, जो उन्होंने बताया कि 75% के ऊपर है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जब आपका ग्रोथ आता है, जो स्केल मिलता है, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा आपको बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आपका जो फिक्स कॉस्ट है, जो आपकी मार्केट रीच का कॉस्ट है, वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपका एंट्रेंचमेंट ऑलरेडी मार्केट के साथ बहुत डीप है। तो ये 3 चीज़ें बैकग्राउंड ऑफ द माइंड रख के हम फाइनेंशियल नंबर्स पे थोड़ा गौर करें। देखिए, पिछले 3 सालों में कंपनी ने 50% ग्रोथ दिया है। अब अगर दशकी 18% केगर जो बताया शुभो ने, 18% केगर पे कंपनी ने ग्रो किया है 2014 से 2024। उसको अगर हम तोड़ें, 2014 से 2019 तक कंपनी 30% प्लस ग्रोथ रेट दे रहा है। उसके बाद कोविड का टाइम आया, 750 करोड़ के आसपास रीसेट हुआ, और जब कोविड निकला और उसका जो डिमांड स्पर हुआ आफ्टर कोविड, जो स्केलिंग अप है वो कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से किया, और वो स्केलिंग अप 2 साल में 2 बार हुआ। एक जब 760 से हम लोग 1150 पे पहुंचे, और 1150 पे 1740। तो इसका जो ऑपरेटिंग मॉडल है जो कंपनी का, वो उसका स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल होता है कि आप 1 साल में और फिर वापस 1 साल में 50% दोनों साल में कंटिन्यूसली कंपनी ने ग्रोथ देखा। अगर हम रेवेन्यू का स्प्लिट देखते हैं, 85% हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है एसएलसीएम, उससे आता है, 9% बाकी चीजों से आता है, बैचिंग प्लांट हो गया, बूम पंप हो गया, ट्रांजिट मिक्सर हो गया, और बाकी 6% स्पेयर से आता है। अगर हम एसएलसीएम का ग्रोथ देखें, एसएलसीएम में 58% ग्रोथ किया कंपनी में पिछले 2 साल, नॉन एसएलसीएम में 24%, और नॉन एसएलसीएम का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे बूम पंप्स हो गए, उसमें हमने मार्केट से आगे जाके ग्रो किया, और वो दर्शाता है कि जो हमारा
B2B सेक्शन है या नॉन SLCM सेक्शन है, उस पे कंपनी का फोकस अब बढ़ना शुरू है, और इसलिए जो शुभो ने बताया कि हम 4 से 5